international trade, which he presented in the year 1936 in his book, The Theory of International Trade. And this theory, also known as the Habermas theory of opportunity cost or Habermas theory of international trade. Okay, so this is what the theory, but actually why he has presented this theory. So there are certain reasons behind that. जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैव प्रेजेंटेड the two important theories. The one is the classical theory of absolute cost advantages, and the second one, the relative cost advantages theory of international trade, presented by the David Ricardo. This theory, generally classical theory presented by the David Ricardo, is criticized by the various economists. In the theory presented by the David Ricardo, उसके अंदर कुछ lacunas थे. He has taken certain assumptions. Based on certain assumptions, this theory was presented by the David Ricardo. वो important assumption कौन कौन से है ये हम अभी देखते हैं. जैसे कि one assumption था, the labor is the only factors of production. Labor is the only factors of production, and with the help of that, the both the countries produces the goods and services, and these goods and services they are importing and exporting between the countries, and in this way, if we trade with each other, the trade will be beneficial to the both the countries. So only labor is the factors of production presented by the uh, डेविड रिकार्डो. ओके, लेकिन मुझे बता फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ओनली लेबर यूज किया जाता है क्या? No. No. There are multiple factors of production. With the help of that, we produce the goods and service: land, labor, capital, entrepreneur, technology, raw material, electricity, infrastructure, advertising, transportation. There are multiple factors who contribute to produce the goods and services. There are only labor is not only factors of production. ये इसको क्रिटिसाइज किया गया. और दूसरा जो लेबर जो है, वो लेबर रिकार्डो ने एज्यूम किया था लेबर इज द होमोजेनियस फैक्टर. तो मुझे बता लेबर होमोजेनियस होता है क्या? प्रैक्टिकली देखी जाए तो हर लेबर सेम होता है क्या? No, sir. लेबर No, इज sir. ऑल्सो नॉट होमोजीनियस. हर एक लेबर की क्वालिटी होती है. कोई स्किल लेबर होता है, कोई अनस्किल लेबर होता है, और हर एक लेबर जो है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर्स आर देयर. मतलब तो यहाँ पे क्या है, लेबर इज नॉट होमोजेनियस फैक्टर. सो देयरफॉर this theory criticized by the various economists, which is presented by the David Ricardo, the theory of comparative cost. तो डेविड रिकॉर्डिंग की जो थ्योरी है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस थ्योरी, इसी को रिफॉर्मुलेट किया है किसने? हैबरलर ने. थोड़ा न्यू वे से उसने प्रेजेंट किया है. मतलब एक्चुअली द हैबरलर इज द इकोनॉमिक्स हु सपोर्टेड टू द थ्योरी ऑफ comparative cost theory of international trade presented by David Ricardo, but the Haberle ने उसको एक अलग वे से प्रेजेंट किया है. There are certain modification he has made in that theory, and he presented uh, the comparative cost advantages theory of international trade in a new ways, and उसी theory को उसने नाम दिया है द कंपेरेटिव कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एडवांटेज. मतलब उसने यहाँ पे कंपेरेटिव कॉस्ट की जगह पे उसने कौन सा वर्ड यूज किया है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कंपेरेटिव कॉस्ट, हैबरलर यूज द अनदर वर्ड दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो इसके लिए इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? जनरली द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रेजेंटेड बाय द हैबरलर. तो हैबरलर इज economics who developed this theory. Opportunity cost means what? It is the next best alternative foregone. Next best alternative foregone. That is sacrificed by the person. जैसे कि सपोज यहाँ पे कोई फार्मर है, फार्मर के पास ये 1 acre ऑफ लैंड है, दोनों के पास सेम लैंड है ये, ठीक है. एंड इन दैट लैंड दे कैन प्रोड्यूस द आइदर व्हीट और दे कैन प्रोड्यूस आइदर राइस. दोनों को में से कोई भी एक प्रोडक्शन वो कर सकते हैं, राइस या फिर व्हीट. लेकिन अगर यहाँ पे सपोज इफ द फार्मर कल्टिवेट द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, तो उसको कितना पैसा मिलता है? सपोज 50,000 मिलते हैं.
right? He will earn 50,000 in a year. But as he cultivate in that land, in the 1 acre of land, then he will earn how much here? सपोज यहाँ पे हम 60,000 लेते हैं, तो मुझे बताओ वो कौन सा प्रोडक्शन करना चाहेगा, राइस का या फिर वीट का? फार्मर अगर कल्टीवेट करता है राइस तो उसको 60,000 मिलते हैं. Rice. डेफिनेटली ही विल प्रेफर टू प्रोड्यूस द राइस प्रोडक्शन बिकॉज उसको यहाँ पे अर्निंग ज्यादा मिलती है. मतलब बेस्ट उसके लिए कौन सा ऑप्शन है? टू प्रोड्यूस द राइस एंड कल्टिवेट राइस एंड सेल इनटू द मार्केट एंड गेट 60,000 रुपीज, राइट? तो ये बेस्ट ऑप्शन है किसके लिए? फार्मर के लिए. लेकिन नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है? नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है? Wheat. वीट. अगर ये यहाँ पे तीसरा प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे इन 1 acre ऑफ लैंड अगर कोई यहाँ पे पल्सेस का प्रोडक्शन करता है, पल्सेस का प्रोडक्शन करता है तो उसको कितने मिलते हैं? सपोज यहाँ पे उसको 40,000 मिलते हैं. तो तीनों में से उसको बेस्ट प्रोडक्शन कौन सा है? उसको राइस है एंड गेट अर्न 60,000 रुपीज. बट नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है? नेक्स्ट बेस्ट Wheat. नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्शन इज द वीट. मतलब बट ये 50,000 उसने सैक्रिफाइस किए हैं. दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट मीन्स द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन और सैक्रिफाइस्ड बाय द फार्मर इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. उसको कह सकते हैं अलग वर्ड में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द व्हाट क्वांटिटी ऑफ वन गुड्स, what quantity of one goods has been sacrificed in order to get more quantity of another goods. More quantity of another goods. मतलब to produce the quantity of rice, we are sacrificing the quantity of wheat, right? तो opportunity cost of producing rice क्या होगा? To produce the wheat. The next best alternative foregone by the farmers. तो ये किसका एग्जाम्पल कह सकते हैं? या फिर इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व हैज बीन कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अलग अलग नाम से जाना जाता है. ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, पीपीसी, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं. सॉरी, एपी लर्नर ने कहा है प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व एंड प्रोडक्शन इंडिफरेंसिव कर्व. बट द सैमुअल्सन ने इसको क्या कहा है? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व को. तो अकॉर्डिंग टू Haberler says that if we do international trade with the other countries by considering the opportunity cost, then the international trade between the countries will be beneficial to the country. मतलब while trading with other countries, we need to consider the opportunity cost, and based on that we need to produce. We need to select कौन सा कमोडिटी प्रोड्यूस करना है और कौन सा कमोडिटी एक्सपोर्ट करना है और कौन सा कमोडिटी इंपोर्ट करना है. So based on the opportunity cost, if we trade with the other countries, then the international trade will be definitely beneficial to the international trade participants countries. So this is what the basic idea behind that the theory. अभी हम देखते हैं यहाँ पे there are 3 types of opportunity cost curves are there. नंबर 1 कंडीशन कौन सी है? दैट इज द कांस्टेंट कॉस्ट. कांस्टेंट कॉस्ट क्या होती है? यहाँ पे हम अभी विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आल्सो विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अंडर द कांस्टेंट कॉस्ट. मतलब सेम अमाउंट ऑफ वन गुड इज रिक्वायर्ड टू गिवन अप फॉर प्रोड्यूसिंग वन मोर क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटीज. डेफिनेशन बहुत एकदम सिंपल और क्लियर है. मतलब if you want to produce the more quantity of one goods, the same quantity of another goods we have to sacrifice. That is known as a opportunity cost under the constant cost. मतलब यहाँ पे सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे there are different combinations of the goods, that is x and y goods.
यहाँ पे एग्जांपल दिया है, दिस इज अबाउट द एक्स गुड्स, दिस इज वाई गुड्स एंड दिस इज द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यहाँ पे सपोज दिस इज द एक्स गुड्स, सपोज यहाँ पे हमें एक्स गुड्स यहाँ पे है, ठीक है, एक्स डायग्राम में देखो यहाँ पे एक्स गुड्स है और यहाँ पे क्या है वाई गुड्स है, ठीक है। एंड सपोज if India decided to produce only Y goods, so maximum Y goods he can produce how much? 10. Or if the country decided to produce or the person decided to produce X goods, maximum how much he can produce? That is 5 of X goods. Now we'll consider here, suppose these are the different combination of X and Y goods, and suppose if you want to produce the one quantity of X goods, यहाँ पे if you want to produce one quantity of X goods, how much quantity of Y goods we need to sacrifice here? यहाँ पे पहले कॉम्बिनेशन पे देखो, यहाँ पे इसको ए नाम देते हैं, यहाँ पे ये एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है ये, और ये बी कॉम्बिनेशन है। मतलब एट ए कॉम्बिनेशन द कंट्री कैन आइदर प्रोड्यूस द 10 क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स, और at this combination at F combination the country can produce the 5 quantity of uh, X goods. Okay, at this combination suppose if we want to produce one quantity of X goods, how much quantity we need to sacrifice of Y goods? बोलो। 8. 8 नहीं, मतलब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन क्या है, द कंट्री कैन आइदर प्रोड्यूस, मतलब विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज द कंट्री कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफ वाई गुड्स। कितना प्रोड्यूस कर सकती है? 10। 10. 10 वाई, ओके, 10 वाई गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अगर उसने सपोज डिसाइड किया इफ द कंट्री वांट टू प्रोड्यूस वन क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स, मतलब यहाँ के रिसोर्सेज कुछ यहाँ पे इसको डाइवर्ट करने पड़ेंगे, राइट, लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल, कुछ तो डाइवर्ट करना पड़ेगा ना टू प्रोड्यूस द एक्स गुड्स। So definitely if the country want to produce one quantity of X goods, how much quantity the country need to sacrifice of Y goods? 2. Yes, definitely 2 he need to sacrifice। देखो यहाँ पे इसे 8 माइनस, सॉरी 10 माइनस 8 करोगे तो आपको 2 आएगा। मतलब एट दिस लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन, एट बी कॉम्बिनेशन पे देखो द कंट्री कैन प्रोड्यूस आइदर 8 of Y goods और 1 of X goods, राइट। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर इफ वी वांट टू प्रोड्यूस वन मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स लाइक 2 क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स, हाउ मच क्वांटिटी वी नीड टू सैक्रिफाइस ऑफ वाई गुड्स? यहाँ पे अगेन हमें कितना सैक्रिफाइस? Again 2. Again we need to sacrifice at C combination, again we need to sacrifice 2 quantity of Y goods, right? Again if you want to produce the one more quantity of X goods, we need to sacrifice more 2 quantity of Y goods at the combination of D point पे। देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, if we have decided to produce more extra quantity of X goods, we need to sacrifice the same quantity of Y goods। देखो यहाँ पे कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, एट पॉइंट बी पे 2 सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। यहाँ पे रेशियो देखो 2 से हम यहाँ पे भी 2, मतलब रेशियो क्या हो रहा है, सेम। देखो सेम अमाउंट ऑफ वाई गुड्स, यहाँ पे देखो सेम अमाउंट ऑफ वाई गुड्स is required to sacrifice to produce one more quantity of X goods। अगर X goods हमें प्रोड्यूस करना है, जो सेम क्वांटिटी ऑफ Y goods we need to sacrifice। यहाँ पे अगर एक ज्यादा प्रोडक्शन करना है X goods का, we need to sacrifice the same amount, that is 2 Y goods। बोलो। सर सेकेंड में तो लाइक अगर 10 क्वांटिटी टोटल है एंड हमें 2 प्रोड्यूस करना है तो 4 अमाउंट ऑफ गुड सैक्रिफाइस हो रहे हैं ना, तो ये तो 2:1 रेशियो आएगा। 2:4, 2:1। कहाँ पे? सेकंड पे? हाँ सी।
पॉइंट सी। सी पे देखो, इफ एट पॉइंट बी देखो, आइदर कंट्री कैन प्रोड्यूस द वन गुड्स और 8 गुड्स, राइट। हाँ, तो यहाँ 2 सैक्रिफाइस हो रहा हाँ, है। रुको ना, आइदर द कंट्री कैन प्रोड्यूस वन गुड्स ऑफ एक्स और 8 गुड्स ऑफ वाई, बट इफ द कंट्री डिसाइडेड टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ के जो रिसोर्सेज यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, लेबर, कैपिटल, जो भी रिसोर्स है, रॉ मटेरियल, सो दैट वी नीड टू डाइवर्ट टू प्रोड्यूस द क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स। तो इफ वी वांट टू प्रोड्यूस द मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स, फ्रॉम इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स गुड्स, देन वी हैव टू सैक्रिफाइस द टू गुड्स ऑफ वाई। तो हमें प्रोडक्शन, अभी यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन कम हो गया, 8 से कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब इफ वी सैक्रिफाइस टू क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स, then and then only we can produce one more quantity of x goods। मतलब यहाँ पे क्या रहा है, वी आर सैक्रिफाइसिंग द सेम रेशियो, वी आर सैक्रिफाइसिंग द गुड्स। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर quantity of x goods, we need to sacrifice the y goods in a same amount। so this is what the constant cost, मतलब जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, 2/1 है। 2/1 2/1 2/1 वही है। मतलब if you want to produce the more one more quantity of x goods, we have to sacrifice the same quantity of other goods, that is y। देखो यहाँ पे पहले देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व क्या होता है, ये देखते हैं पहला भी, ये ऑलरेडी डिस्कस किया लेकिन फिर भी देखते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, ये कौन सा लाइन है, ये सपोज ये जो लाइन दिखाई नहीं मैंने, ये कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये क्या क्या इंडिकेट करता है, द वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स द कंट्री कैन प्रोड्यूस बाय एम्प्लॉइंग अवेलेबल रिसोर्सेस, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, लाइक दैट। तो अगर कंट्री, if the country just want to produce the only x goods, though they can produce maximum 5। अगर कंट्री को खाली प्रोड्यूस करना है y goods, तो मैक्सिमम दे कैन प्रोड्यूस द 10 ओनली। तो इसी को ज्वाइन किया तो वी हैव गेट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। सो दिस इज अंडर द कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन। कांस्टेंट कॉस्ट मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ द वन गुड्स वी आर गोइंग टू सैक्रिफाइस। यहाँ पे 2 का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 का कर रहे हैं, यहाँ पे 2 का कर रहे हैं कि नहीं। सेम अमाउंट ऑफ y goods we are sacrificing to get one more quantity of x goods। y का one more quantity प्रोड्यूस करना है तो we have to sacrifice the 2 quantity of y goods। so with the same proportion, with the same rate, with the same constant cost condition, we have to sacrifice the quantity of y goods, then we can produce the one more quantity of x goods। so this is under the constant cost condition। अब ये कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन है। अब ये दूसरा जो यहाँ पे है वो क्या है कि इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन। इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन देखो, इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, द मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ वन गुड्स वी नीड टू सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस वन मोर क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड्स। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन देयर इज वन टेबल इज देयर। यहाँ पे देखो रेशो कैसा है, अगर यहाँ पे सपोज इफ देयर इज अ कंट्री इज देयर, यहाँ पे एक्स गुड्स है, द कंट्री कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफ हाउ मच, एक्स का मैक्सिमम दे कैन प्रोड्यूस द 4 क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे 4 क्वांटिटी है और दे कैन प्रोड्यूस द 10 क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स। ये वाई है, वाई एक्सिस है यहाँ पे। तो यहाँ पे if all the resources we have employed to produce the y goods, then we can produce maximum of 10 quantity of y goods। अगर all the resources we have employed to produce the x goods, then maximum of x goods कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, that is 4। तो हम अगर ऐसे कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर if we decided to produce both the goods, like if we decided to produce one quantity of x goods and y के कुछ प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे देखो if we want to produce one quantity of x goods, then here how much we need to sacrifice, बोलो कितना y कमोडिटी का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एट पॉइंट बी पे देखो 1 we have to sacrifice to produce x goods, right।
अगर हमें वन मोर क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है ऑफ द एक्स गुड्स, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स वी हैव टू सैक्रिफाइस हियर? 9 to 7। 4 4 कैसे? 9 to 7। 1 to 7 1 to 2 से अगर वन मोर क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एक्स वाई गुड्स वी हैव टू सैक्रिफाइस? दैट इज 2। मतलब वी आर सैक्रिफाइसिंग मोर। पहले 1 सैक्रिफाइस किया टू प्रोड्यूस 1 क्वांटिटी, अभी भी 2 सैक्रिफाइस किया टू प्रोड्यूस 1 मोर क्वांटिटी। अगर 1 मोर क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है यहाँ पे 2 to 3, अगेन हाउ मच वी हैव टू सैक्रिफाइस ऑफ वाई गुड्स? डी पे 3 yes, 3 quantity we have to sacrifice of the y goods, then only we can produce the quantity of x goods more. Agar one more quantity of x goods we want to produce, that is 4 goods, then we have to sacrifice here how much? 4 quantity of y goods, then and then only we can produce the 4 quantity of x goods. तो ये क्या है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है डेफिनेशन देखो, मोर ऑफ वन कमोडिटी नीड टू बी गिवन अप। मोर ऑफ वन कमोडिटी मतलब यहाँ पे वाई गुड्स, मोर ऑफ वाई गुड्स वी नीड टू सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। देखो मोर एंड मोर, द क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स वी नीड टू सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस वन मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स। एक्स गुड्स का हमें ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूशन करना है, वन मोर एंड मोर, तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी इंक्रीजिंग रेट में क्वांटिटी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, किसकी? वाई की, राइट? यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस वन क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स हियर, हाउ मच वी नीड टू सैक्रिफाइस हियर? 9 10 to 9, मतलब कितना सैक्रिफाइस किया? एक क्वांटिटी सैक्रिफाइस की, राइट? एट पॉइंट ए, यहाँ पे इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, ये डायग्राम अलग हो गया, यहाँ पे इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है? ये अलग पॉइंट है, इसको पॉइंट ना, इसको यहाँ पॉइंट का नाम नहीं दिया। अगर हमें इफ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स, 2 क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, तो वाई की कितनी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा हमें? 9 to 7 यहाँ पे, राइट? मतलब यहाँ पे पहले हमने 1 सैक्रिफाइस किया, अभी यहाँ पे हमने 2 सैक्रिफाइस किया, देन ओनली वी कैन प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स। अगर हमें वन मोर क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है एक्स की, ये लाइक यहाँ पे 3 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तो हाउ मच वी हैव टू सैक्रिफाइस द क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स? यहाँ पे 4, राइट? मतलब कितना सैक्रिफाइस किया? 3 का सैक्रिफाइस किया कि नहीं? मतलब मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स वी नीड टू सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स। जो सैक्रिफाइसिंग करने का जो रेट है वो क्या है? इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे डिस्टेंस देखो, ये कम डिस्टेंस है, ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है, ये और बड़ा डिस्टेंस है, ये और बड़ा डिस्टेंस होगा यहाँ पे। मतलब टू प्रोड्यूस द मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ वन गुड, दैट इज एक्स, द मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स वी नीड टू सैक्रिफाइस। तो ये जब इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन में जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व वो कैसा होता है? बोलो, ये कौन सा है कर्व? मतलब ये कॉनकेव है कि नहीं? यस सर। ये कॉनकेव है। पहले कैसा था? कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन में कैसा था? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर लाइक दैट, ये ऐसा था। इंक्रीजिंग कॉस्ट में ये कॉनकेव है। अभी डिक्रीजिंग कॉस्ट में कैसा देखो? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। अभी ये देखते हैं हम कैसे। इन डिक्रीजिंग में क्या होगा? लेस एंड लेस क्वांटिटी ऑफ वन गुड्स, लेस एंड लेस क्वांटिटी ऑफ वन गुड, मतलब यहाँ पे वाई देखते हैं हम, ठीक है? लेस एंड लेस क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स वी नीड टू सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड्स, दैट इज एक्स। मतलब एक्स गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें लेस एंड लेस क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स वी नीड टू सैक्रिफाइस। इफ वी वांट टू प्रोड्यूस द वन मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स, हाउ मच वी नीड टू सैक्रिफाइस हियर ऑफ एक्स वाई गुड्स? कितना सैक्रिफाइस करने पड़ेगा? 4, राइट? यहाँ पे डेटा देखो, मैंने थोड़ा चेंज किया अभी, तो हाँ सर, ये डिक्रीजिंग। हाँ, यहाँ पे देखो, अभी इफ यू वांट टू प्रोड्यूस वन क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स, दैट इज देन वी नीड टू सैक्रिफाइस 4 क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स, राइट?
अगर हमें ज्यादा और क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है किसकी, एक्स की, हाउ मच वी नीड टू सैक्रिफाइस हियर, टी गुड्स ऑफ वाई. Again, if we want to produce one more quantity of X goods, we need to sacrifice now two goods of Y. Again, if we want to produce one more quantity of X goods, how much we need to sacrifice here of Y goods? One, right? मतलब यहाँ पे to produce the more and more quantity of the X goods, like यहाँ पे X goods है, we are going to sacrifice less and less quantity of 4, 3, 2, 1, less and less quantity of Y goods, right? अगर यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे सैक्रिफाइस कितना किया, 4 का सैक्रिफाइस किया. इतना सैक्रिफाइस करने के बाद हमें वी कैन प्रोड्यूस दिस मच वन क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये एक्स का प्रोड्यूस करने के लिए हमें इतना वाई का सैक्रिफाइस किया, कितना, 4. यहाँ पे अगेन 3 सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस है देखो, देन वी कैन प्रोड्यूस वन क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स. नाउ वी आर सैक्रिफाइसिंग दिस मच, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, लाइक 2 है, ये यहाँ पे 3 था, ये 3 जैसा डिस्टेंस है कि नहीं, ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं, बोलो. ये जो लाइन का जो शेप है ये कम हो रहा है कि नहीं, ये पहली बड़ी लाइन है, मतलब इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं. Yes, sir. To produce one more quantity of x, the same, this is the distance. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, less and less quantity we need to given up to produce more and more quantity of other goods, that is x. तो there are तो यहाँ पे डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन के अंदर जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कैसा होता है, ये कैसा है, कॉन्वेक्स है कि नहीं. Yes, sir. ये कॉन्वेक्स है. दिस इज अ पीपीपी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. यहाँ पे देयर आर 3 कॉस्ट कंडीशंस आर देयर. एक तो है कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन, दूसरा है इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन, एंड तीसरा है डिमिनिशिंग कॉस्ट कंडीशन. अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि जब हम ट्रेड करेंगे विद अदर कंट्रीज, सो हाउ द ट्रेड विल बी बेनिफिशियल टू द country. So in terms of diagram or in terms of the calculation we have not अभी डिस्कस नहीं किया. अभी इस थ्योरी का जो थीम है, so that will understand here. थ्योरी की थीम क्या है, ये हैबरलर कहता है the nation with the lower opportunity cost curve, nation with the lower opportunity cost curve in the production of commodity has a comparative advantages. मतलब कंट्री को जिस प्रोडक्शन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है उसके अंदर कंट्री को स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, एंड दैट कमोडिटी द कंट्री नीड टू एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज. एंड देखो, एंड वी हैव टू इंपोर्ट द गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इन विच वी हैव अ हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, higher opportunity cost. तो यहाँ पे लिखा है देखो, the nation with the lower opportunity cost in the production of commodity has comparative advantages in that commodity and the comparative disadvantages in the second commodity. ये इसकी थीम है. तो इसी थीम को हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ द टेबल ऑल्सो. यहाँ पे हमने जैसे एग्जाम्पल लिया था राइस और वीट का एग्जाम्पल लिया था, राइट. तो राइस का प्रोडक्शन करते तो हमें कितना मिलता है, 60,000 मिलता है, और वीट का प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो उससे हमें कितना पैसा मिलता है, 50,000 मिलता है. तो सिंपल लॉजिक है, कौन सा प्रोडक्शन करना चाहिए हमें, राइस का करना चाहिए, राइट, बिकॉज उससे कितना पैसा मिलता है, 60,000 मिलता है. तो राइस का प्रोडक्शन के ऊपर हमें पूरा फोकस करना चाहिए, and the excess production of rice we have to export to other countries, और wheat का प्रोडक्शन हमें कहीं से इंपोर्ट करना चाहिए. So that is the theory is telling about. So to explain this theory, the Haberler has taken certain assumptions and based on that assumption he presented this theory. पहला assumption है, जो भी कंट्रीज है, पार्टिसिपेंट कंट्रीज है, वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वहां पे कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. परफेक्ट कंपटीशन है इन बिटवीन द कमोडिटी मार्केट एंड
फैक्टर मार्केट में भी, मतलब प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस है, प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस है इन बिटवीन द कंट्रीज। फैक्टर मार्केट में भी जैसे भी जो भी जो लेबर है या फिर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर दोनों कंट्री में भी अवेलेबल है, वहां पे परफेक्ट कंपटीशन। देन प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इक्वल्स द मार्जिनल कॉस्ट, मतलब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डिटरमाइन ऑन द बेस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी, मार्जिनल कॉस्ट कम होगा तो प्राइस कम होगी, लाइक दैट। Then price of each factor equals to the marginal productivity. Then supply of factors are fixed. जो जो दोनों कंट्री के पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सप्लाई फैक्टर्स है, वो कैसे फिक्स्ड है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, दे आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज द अनदर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर टेक्नोलॉजी लाइक दैट। टेक्नोलॉजी दोनों कंट्री में सेम है, वहां पे नहीं है एक्चुअली, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। टू कंट्रीज है, एक तो ए कंट्री और बी कंट्री, हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे यूएसए एंड यूके का एग्जांपल लेंगे हम फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। देन टू कमोडिटीज वी विल टेक, एक तो पहला कमोडिटी लेंगे वो है द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ लेंगे और दूसरा लेंगे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट लेंगे, ठीक है, दो कमोडिटीज लेंगे। देन ईच कंट्री हैज टू प्रोडक्टिव फैक्टर्स, दोनों कंट्री के पास दो फैक्टर्स है, लेबर और कैपिटल है, सो विद हेल्प ऑफ दैट दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस the production of X and production of Y goods. Perfect mobility है, मतलब factors can mobile within the country from one state to other states, they can move, but the factors of production cannot move from one country to another country, so they are immobile between the countries. Then जो there is no restrictions upon international trade, there is no restrictions upon international trade, so it means there is a free international trade, there is no transportation cost, there is no any government barriers in terms of in custom duties, import tax, export tax, different rules and regulations, so there is a free trade is there between the countries. So these are the certain uh, assumptions are there, and with the help of that assumptions, the Haberler trying to explain how the international trade will be beneficial to the countries in terms of opportunity cost. तो कंट्री को किस कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, कौन सी कमोडिटी एक्सपोर्ट करनी चाहिए इन विच द कंट्री हैज अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो अभी ये जो जो टाइप टेबल है एंड द डायग्राम्स आर देयर, तो ये जो हम जरा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।